Assalamu alaikum students. Welcome. How are you students? Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Today our topic is adjacent, complementary and supplementary angles. We will solve question number 4 and question number 5 of exercise 7b. Before we start, can anyone tell me what is obtuse angle? Yes, good. Obtuse angle is an angle which is greater than 90 degree. And what is reflex angle? Yes, well done. Reflex angle is an angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree. Okay. Now introduce each type of angle with clear definitions and examples. Adjacent angles. Adjacent angles are two angles that share a common side and a common vertex but do not overlap. Example, if we have two angles, one measuring 40 degree and another measuring 50 degree, and they share a common side, then these angles are adjacent to each other. Basically जो adjacent angles होते हैं ना, उन दोनों angles की side और vertex जो है वो common होता है. Look at the figure. एक straight line है और इस पे 290 डिग्री के एंगल्स ड्रा हैं. तो ये जो दो एंगल्स हैं, देखिए इनका जो साइड है और इनका जो कॉमन वर्टेक्स है वो सेम है, यानी ये कॉमन वर्टेक्स एंड साइड शेयर कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट स्टार्ट complementary angles. Definition of complementary angle is that two angles are complementary if the sum of their measures is 90 degree. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसमें टू एंगल्स का सम करें तो आंसर 90 डिग्री आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वन एंगल इज 30 डिग्री एंड अनदर इज 60 डिग्री, then these angles are complementary because the sum of both is equal to 90 degree. And supplementary angles, two angles are supplementary if the sum of their measure is 180 degree. For example, if one angle is 110 degree and the other is 70 degree, then the sum of the both is equal to 180 degree, which is supplementary angles. Okay students, open your maths book, page number 124. We will solve question number 4 and 5 from exercise 7b. Okay students, open your book. Students, your concepts must be clear. If your concepts are clear, you will be able to solve any question of complementary angles and supplementary angles. Okay, in question number 4, find the complementary angles of the given angles. आपने complementary angle find करना है जो given angle दिया गया है उसका. A पार्ट में है 65 डिग्री. आपने 65 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है. तो आप इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू एड अप 90 डिग्री. तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री की बात आएगी तो 90 डिग्री का एंगल यूज होगा. तो आपने 90 डिग्री एंगल में से जो गिवन एंगल है उसको माइनस करना है, और आपके पास 90 डिग्री में से जब 65 को माइनस किया है तो क्या आया? 25 डिग्री. ये जो 25 डिग्री है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री है. तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो 25 डिग्री आया है इसको जो गिवन एंगल है उसमें ऐड करें तो हमारे पास 90 डिग्री आता भी है या नहीं, क्योंकि जब दो एंगल्स को सम किया जाए तो आंसर 90 डिग्री आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में. तो इन यहाँ पे हम 25 डिग्री को गिवन एंगल में ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आया 90 डिग्री. इट्स मीन 25 डिग्री एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट. We have to find the complementary angle of 12 डिग्री. फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे कि 90 complementary angle जो है
वो इक्वल होता है सम अप टू 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री में से जो गिवन एंगल है उसको माइनस करें, आपके पास क्या आया 78 डिग्री। ये 78 डिग्री एंगल जो है यही आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल है। बट इसके लिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमने ठीक निकाला है या हमारा रॉन्ग है। तो आप इस जो आपके पास एंगल आया है इसको आप गिवन एंगल में ऐड करें, और अगर आपका आंसर 90 डिग्री आता है तो इट्स मीन के योर आंसर इज राइट। जब आपने इनको ऐड किया है तो इसमें आया 90 डिग्री। डिग्री एंगल इज कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 12 डिग्री। ओके, ओपन योर नोटबुक, सेम, राइट डेट, पेज नंबर एंड डेट. You will solve the remaining part C and D. Okay, next look at question number 5. 5. The supplementary angle of the given angles. आपने क्या करना है, जो आपको गिवन एंगल है इसके आपने सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने। लुक एट ए पार्ट, 165 डिग्री। आपने 165 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर। यू नो सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एड अप टू 180 डिग्री। तो अब सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो आपने 180 डिग्री में से जो गिवन एंगल है उसको माइनस करना। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आया है 15 डिग्री। जो 15 डिग्री है ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ गिवन है। तो देखते हैं कि ये जो 15 डिग्री एंगल आया है ये करेक्ट है। तो आप इस 15 डिग्री जो भी एंगल आपके पास आएगा आपने उस एंगल को गिवन एंगल में ऐड कर देना। ऐड करने के बाद अगर आपके पास 180 डिग्री आंसर आता है तो इट्स मीन योर आंसर इज राइट। Hence 15 degree is supplementary angle of 165 degree. In B part, we have to find the supplementary angle of 49 degree. इसमें आप 180 डिग्री में से आप क्या करेंगे, गिवन एंगल को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आया 131 डिग्री। आप गिवन एंगल को ऐड करें, अगर आपके पास 180 डिग्री ही आंसर आता है तो इट्स मीन योर आंसर इज correct. So 131 degrees supplementary angle of 49 degree. You will solve C part and D part on your notebook. Okay students. Allah Hafiz.